Good morning, class 8th. Again, I am KN Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class, we are studying chapter number 15 at present, which is light. And in this chapter, we have studied about three types of substances: opaque substances, translucent substances, and transparent substances. As I have told you, that if light falls on any object and after falling it reflects and bounces back in our eyes, then that substance is visible. Okay, so if light falls on any objects, then there may be any one condition out of these three. Number one, if light falls on any object, then this light may passes through that object. This condition is transparent. Transparent. If the object is transparent, then the light falls and not reflect. It goes through it, passes through it. Then the object is transparent. Okay. Now, second condition is some part of light absorb, some part of light reflects by the object. This substance is translucent. Translucent. And third condition is if the substance is opaque, then all the light falls on it, it can absorb. And if the surface of that opaque object is plane, then the light rays bounce back into the same medium. So, reflection of light depend upon the surface on which the light falls. If the surface is regular, if the surface is smooth, then the light rays falls and reflects in same plane. And if the surface is irregular, rough, then the light falls on it and it doesn't bounce back straight. It doesn't follow the rules of reflection. Some part of light it absorbs and some part of light it reflects, but reflection is not in the same direction, in the same plane. Okay, we are going to discuss about reflection of light today. Open page number 206 in your book. As written here, when the light falls on an object or any surface, there are three possibilities. वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. पहला, the light may completely pass through it. दूसरा, the light may be absorbed. और third, the light may bounce back after striking the object or the plane surface. Okay? The bouncing back of the light rays from the surface of an object is called reflection. इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग. The ray of light which falls on an object is called incident ray. ये भी हमने आपको पहले बताया था. लाइट की जो रे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फॉल होती है, इस रे को हम बोलते हैं आई, यानी कि इंसिडेंट रे. हियर आई स्टैंड फॉर incident ray. Okay, now the ray which bounce back, which reflects back from that surface is called reflected ray. R means reflected ray. Okay, now a more point here, one more point here. This straight line is called O, and the angle from this line, this mid line, and the eye ray, this angle is known as eye angle, मतलब incident angle, and the angle from here in between the midpoint and reflected ray,
इज नोन एज एंगल आर। कैसे इसको लिखते हैं? एंगल आई एंड एंगल आर। ये बातें हो चुकी थी। आयुष पांडे आ रहा है समझ में? नैन्सी मिश्रा, रजनीश चौधरी। इस पेज को ओपन करके ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट कास्ट देयर शैडोज। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस डज नॉट अलाउ द लाइट फॉलिंग ऑन इट टू पास थ्रू। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। और रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट एब्जॉर्ब लाइट फॉलिंग ऑन इट, वही बात लिखी हुई है। जो लाइट की रेस फॉल होती हैं किसी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट पे, वो लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता है, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट्स शैडो इज सीन बिहाइंड इट। द लाइट रेज A and B above the mirror pass straight. The light ray C touches the top of the mirror. ये इस डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे तब आपकी समझ में आएगा। दिस डायग्राम, इसमें ABC लिखा हुआ है, तो ये बिना ड्रॉ किए आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका है, इसको आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अकॉर्डिंग टू डेफिनिट लॉज। कुछ लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, और लाइट की रेज उन लॉज को फॉलो करती है। वो कौन से लॉज हैं हम देखते हैं। नंबर 1, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इंसिडेंट रे है इसको बोलेंगे एक प्लेन। ये ऑब्जेक्ट है तो इस तरफ इसका एक प्लेन होगा, दूसरी तरफ इसका दूसरा प्लेन होगा। आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है, इसको एक मीडियम कहेंगे, सेम मीडियम, और इसको कहेंगे दूसरा मीडियम। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो प्लेन है, ये जो मिड लाइन हमने खींची है, ये तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। एज रिटन इन योर बुक, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहा है। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो हमने आपको बताया, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ आपकी बुक में लिखा हुआ है, और यही दो लॉज हैं भी। तो ये दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको PT4 एग्जाम में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसलिए खूब ढंग से इसकी तैयारी करिए। फिर एक एक्टिविटी 4 दी हुई है यहाँ पे, वेरीफाइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड शोइंग दैट द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। सभी के घर पे मिरर है, अपना चेहरा देखते हैं उसमें, चेहरा देख के तभी आप स्कूल आते हैं, पता है हमको। तो मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है? मिरर के बिहाइंड में। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? वो रियल इमेज, ऑब्जेक्ट तो रियल होता ही है, वो इमेज रियल नहीं होता, इमेज वर्चुअल होता है। ठीक है, हम आपको इमेज के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे। पहले थोड़ा सा और देखते हैं क्या हेडिंग है इसमें है, ब्राइटनेस ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। एक्टिविटी 4 आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो। सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर ब्राइटर देन द अदर्स। हमने लाइट के दो तरह के सोर्स बताए थे आपको, एक नेचुरल ल्यूमिनेसेंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमने बताया था मैन मेड। तो जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हों चाहे मैन मेड ऑब्जेक्ट हों, वो दो तरह के होते हैं। कुछ बहुत ही ब्राइट उनकी लाइट होती है, लाइट इमिट करते हैं बहुत ही ब्राइट, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाइट इमिट करते हैं ब्राइट नहीं, बल्कि ब्राइट से थोड़ा कम। तो लिखा हुआ है, सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर ब्राइटर देन द अदर्स। द ब्राइटनेस ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी।